है इसके सेक्रेटरी के रूप में अपना योगदान दे महाराज वो भी दे रहे हैं और ऑल्सो और 2011 से 2000 महाराज जीबीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी महाराज अभी एक एक्टिव मेंबर है सीन संन्यास मिनिस्ट्री के और महाराज डिस्कॉन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के भी एक मेंबर हैं। तो ये बहुत संक्षेप में महाराज के बारे में मैंने आपको बताया और वास्तविकता में ये बहुत ही कम है महाराज को बताने के लिए। महाराज एक तरफ वैष्णव है और बहुत ही सुंदर भक्त है। महाराज आज की जो कक्षा है ये अंग्रेजी में देंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस कक्षा का हिंदी में अनुवाद करके आपको समझा सकें। तो हमारे पारंपरिक तरीके से हम महाराज के बारे में आप जानते हैं, महाराज के प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं। तो उससे पूर्व हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी महाराज का एक बार बहुत अपने हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। महाराज के साथ हमारे साथ दो और मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वयं ज्योति प्रभु लंदन यूनाइटेड किंगडम से आए हुए हमारे साथ और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं स्वयं ज्योति प्रभु, उनके प्रोग्रामिंग और हमारे साथ स्वामी चैतन्य प्रभु हैं। स्वामी चैतन्य प्रभु हमारे बहुत ही डियर गॉड ब्रदर हैं। मुझे थैंक यू स्वामी चैतन्य प्रभु फॉर कमिंग हियर। Hare Krishna. Not wrong. Hare Krishna. Put it on. Hare Krishna. So I'm very happy to be with you today. It's the mercy of Srila Prabhupada and Bhakti Charamaj. मैं आप सभी के समक्ष आकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ये श्रीला प्रभुपाद और श्रीला भक्ति स्वामी गुरुदेव की कृपा के कारण संभव हो पाया है। By their mercy and in their service, I am here today to serve you. उनकी कृपा से एवं उनकी सेवा में यहाँ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। Today I will speak on a verse of Bhagavad Gita. आज मैं आपके समक्ष भगवद गीता के एक श्लोक को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। And I will try to share with you what the perfection in devotional service, what it means. और मैं आपको इसके माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि भक्ति में जो हमारा भक्ति भाव है वो किस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। What is the experience of someone who is engaged in love of Godhead, prema? वो व्यक्ति वो भक्त क्या महसूस करता है जो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Kivaradhari
Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, the opulence of the Absolute, text 9. लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय और 9वें श्लोक से चर्चा करने जा रहे हैं। Matchiti matchata prana bodhayanta parashpam katyanta samam nityam tusham cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. We can go slow. The thoughts of my pure devotees. Yeah, but otherwise you can translate. I'm going slow. The thoughts of my pure devotees. They dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss
और वे संतुष्टि और खुशी प्राप्त करते हैं from always enlightening one another and conversing about me. मेरे बारे में चर्चा करके और मेरे बारे में सोचकर वे खुशी प्राप्त करते हैं That I will read the first paragraph of the purpose, and then you can read also the first paragraph. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं वे रमे रहते हैं उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाता है इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अनहर्ष लगे रहते हैं उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं This verse describes the activities of pure devotees in the spiritual world. ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्तों के आचरण और उनकी भगवान के प्रति आस्था को वर्णन करता है Omagyanatimirandasya Chanansla Shalakya Sakshan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Yena Bhutaleshvyam Rupakalamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiro Shri Yuda Padakamalam Shirom Vaishnavamsha Shirupam Jagajatam Sagan Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjanasaitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shifishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jyatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansna Gaurangi Radhe Vrindavanashri Vishabhana Sita Devi Pranamama Hare Priya Vankha Kalpta Vasha Kripasan Vaivasha Patnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paskachari Desatarane Srila Prabhupada Ki. So the residents in the spiritual world are called pure devotees. जो आध्यात्मिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत केवल कुछ ही लोगों के लिए है Srila Prabhupada writes, their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. और जो भक्त भगवान पर पूरी तरीके से आश्रित है और भगवान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है उनके मन को कृष्ण से दूर करना संभव ही नहीं है After Akrura went to take Krishna from Vrindavan to Mathura, जब क्रूर कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए गए
The gopis were very dissatisfied. तो जो गोपियां थी वे बहुत चिंतित थी, वो बहुत नाखुश थी। Of course, we know that Akrura later got in trouble, in difficulties, because of pleasing the residents of Vrindavan. और हम जानते हैं कि किस तरीके से अक्रूर बाद में कई सारी परेशानियों में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को लाने के कारण एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन वासियों को नाखुश कर दिया। It got complicated, it got entangled in a very difficult situation concerning the Syamantaka jewel. और उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने श्यामंतक मणि को चुराया है, और ये इसी कारण हुआ क्योंकि उन्होंने वृंदावन वासियों के दिल को दुखाया था। But yes, the gopis felt dissatisfied. They were thinking, Krishna left us. हाँ, ये सत्य है कि गोपियों को काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो हमेशा ये सोच रही थी कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। He is now immatura, is the object of attention of all the ladies of Mathura. Krishna, he left us behind. He's now the object of meditation of all these ladies in Mathura, these city girls. अब जो हमारी गोपियां हैं, गोपियों को लगने लगा अरे कृष्णा तो अब हमें छोड़कर चले गए। अब क्योंकि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, अभी कृष्ण सब मथुरा की जो सुंदर महिलाएं हैं, कृष्ण उनके हो गए हैं, और हम तो यहाँ वृंदावन की गांव की लड़कियां हैं, कृष्ण हमसे कहाँ मोह रखेंगे। So one of the gopis said, he left us. So why should we still speak about him? और उनमें से एक गोपी बोलती है कि जब कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उनके बारे में हम क्यों सोचें? Another gopi said, yes, we should just stop speaking about him and thinking about him. दूसरी गोपी बोलती है ठीक है भैया, अब हम कोई भी कृष्ण के बारे में बात नहीं करेंगे और कृष्ण के बारे में सोचेंगे भी। Another gopi said, yes, let's stop speaking about how beautiful he is. और फिर एक गोपी बोलती है ठीक है, अब हम कृष्ण के बारे में बात करना पूरी तरीके से छोड़ते हैं, और हम कृष्ण की सुंदरता के बारे में भी बात नहीं करेंगे। And another gopi said, yes, let's stop speaking about the very sweet words he was speaking. और दूसरी गोपी बोलती है सही कह रही हो, अब हम कृष्ण की मीठी मीठी बातों के बारे में भी बात नहीं करेंगे। Another gopi said, yes, let's stop speaking about how nicely and sweetly he was dancing with us. हाँ बिल्कुल, अब हम बात करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे कि कितनी सुंदर तरीके से कृष्ण हमारे साथ नृत्य किया करते थे और हमारे साथ गाया करते थे। Another gopi said, yes, let's stop speaking about how he garlanded us. Garlanded, put garlands on. और हाँ एकदम तुम सही कह रही हो, अब हम ये सोचना भी बंद कर देते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से कृष्ण हमें माला पहनाया करते हैं। So it went on like this. They just could not stop speaking about Krishna. और इसी प्रकार ये चलता ही रहा, और वे यही सोचते रहे कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे, और वो कृष्ण के बारे में ही पूरा समय सोचती रही, और ये चलता ही रहा। Their mind was completely absorbed in Krishna, and their minds could not be diverted for a moment. उनका मन पूरी तरीके से कृष्ण में लिप्त था, और उनके मन को कृष्ण से किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। Because क्योंकि if they think of Krishna by their pure love, Krishna is present in their minds. क्योंकि
अगर वो अपने हृदय से कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, तो कृष्ण उनके मन में घर करके बैठे हुए हैं। And they feel ecstatic love. और उनको अत्यंत प्रेम की अनुभूति होती है जब वो पाते हैं कि कृष्णा उनके समक्ष उपस्थित है, उनके मन में। Tushanti Sharamanti cha. They are getting so much bliss just from speaking about Krishna. वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचकर इतना प्रफुल्लित महसूस करते हैं, इतना खुश रहते हैं केवल कृष्ण के बारे में सोचकर, कृष्ण के बारे में सोचकर। So this is the spiritual world. The spiritual world is there is a spiritual atmosphere which is pervaded by bliss and love for Krishna. तो जो आध्यात्मिक परिस्थिति है, जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो सौंदर्य किस चीज में है? वो सौंदर्य उस चीज में है कि किस तरीके से कृष्ण के बारे में ही सोचा जाता है, कृष्ण के बारे में ही विचार किया जाता है, और सारी की सारी चीजें कृष्ण को केंद्र में रखकर की जाती है। तो जहाँ ऐसा होता है वो आध्यात्मिक जगत बन जाता है। In reality, Krishna never leaves Vrindavan. और वास्तविकता में कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। And yes, they are experiencing so many pastimes with Krishna, which are full of great happiness. और वे हमेशा यहाँ गोपियों के संदर्भ में महाराज बोल रहे हैं, और महाराज बोल रहे हैं कि वे हमेशा इस तरीके से उन विचारों में लीन रहते थे जो विचार में वे पाते थे कि वे कृष्ण के साथ हमेशा लीलाएं कर रही हैं। When my spiritual master Bhakti Maharaj spoke on this verse, he told a few pastimes to demonstrate that. जब मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति स्वामी महाराज हमें एक बार उन्होंने कुछ पास्ट टाइम्स बताए, उन्होंने अपने कुछ अनुभव बताए, और इस लीला के बारे में जब वो वर्णन कर रहे थे, मैं बताने जा रहा हूँ। So once Abhimanyu, the so-called husband of Radharani, went out of the house. एक बार श्रीमती राधारानी के जो स्वामी थे, जो पति थे, उनका नाम था अभिमन्यु, वे अपने घर से बाहर चले गए। And his mother Jatila was sitting at the door. और उनकी माँ जटिला दरवाजे पर बैठी थी। So Abhimanyu said to his mother, I'm going to a village a little further for some business and I'll be coming back tomorrow. तो अभिमन्यु कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, आगे एक गांव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं कल वापस आऊँगा। So Abhimanyu left. और इसी तरीके से अभिमन्यु चले गए। Because Krishna is all-knowing. क्योंकि कृष्ण को तो सब पता है। He knew that Abhimanyu left. और कृष्ण को ये भी पता चल गया कि अभिमन्यु एक दिन के लिए गए हैं। He took the form of Abhimanyu and dressed like Abhimanyu. कृष्ण ने पूरी तरीके से अपने आप को अभिमन्यु जैसा बना दिया और उन्होंने अभिमन्यु जैसे कपड़े पहन लिए। And he go to the house of Abhimanyu to see Radharani. और वे पूरी तरीके से अभिमन्यु जैसा बनकर अभिमन्यु के घर में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। And when he comes at the door, Jatila is sitting there. और जब कृष्ण अभिमन्यु के घर में घुसने ही जा रहे थे अभिमन्यु जैसे सच के, तो जटिला दरवाजे पर बैठी हुई थी। And she says, yeah, Abhimanyu, why did you come back? और जटिला फिर अभिमन्यु से पूछती, अरे तुम तो अभी गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? So Krishna in the form of Abhimanyu said, well, I was thinking that I can do that business later. I love you so much, so I came back to be with you. तो अब जटिला बैठी हुई थी, कृष्ण आगे
अभिमन्यु का रूप लेके। तो जटिला पूछते अरे तुम वापस क्यों आ गए? तो कृष्ण बड़ी समझदारी से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कार्य तो कल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए भी आ गया हूँ। ऐसा करके उन्हें जटिला। And then Krishna went in the house, was with Radharani. और सबको पता है कृष्ण उस घर में चले गए जिस घर में राधा रानी थी। But in meantime, the real Abhimanyu came back. और उसी समय असली अभिमन्यु आ गए। And when he came out the house, that Mother Chatila was thinking, this is not my son, this is an imposter. और जैसे ही वास्तविकता में जो असली अभिमन्यु है वो जैसे ही घर में प्रवेश कर रहे थे, तो उसी क्षण जटिला ने देखा अभिमन्यु को और वो अपने खुद के पुत्र को नहीं पहचान पाई। वो कहते ये अभिमन्यु हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभिमन्यु तो अंदर है, ये कोई भैरव भी आ गया। She was thinking, it must be Krishna dressed as my son. ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है, ये जरूर कृष्ण ही है जो अभी आया। And she took a broomstick and was chasing after him. और उसने अपने हाथ में झाड़ू लिया और झाड़ू लेके उसके पीछे भागने लगी अभिमन्यु के पीछे कि तुम अभिमन्यु हो ही नहीं, अभिमन्यु तो अंदर है। And Abhimanyu was crying, I'm your son, I'm your son. अभिमन्यु चिल्ला रहा था, अरे मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, अभी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। But on another time, Krishna was with Srimati Rani in her room. और एक समय कृष्ण श्रीमती राधा के साथ उस कमरे में। And Kotila is the sister of Jatila. और कुटिला जो है वो जटिला की बहन है। She went to ear. She put her ear at the door of the room of Srimati Radharani because she was thinking she was hearing something. तो जटिला क्या, तो कुटिला क्या है? कुटिला जटिला की बहन है। तो वो क्या कर रही थी कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जिस कमरे में थे तो वो कान लगाकर सुन रही थी कि अंदर क्या बातचीत चल रही है। And she was hearing and she heard the voice of Krishna. और वो कान लगाकर जब सुन रही थी तो उन्होंने कृष्ण की आवाज सुनी। And suddenly she opened the door. और उसी क्षण ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। And Krishna jumped out of the window. और कृष्ण उसी क्षण खिड़की से कूदकर बाहर चले गए। But he left his flute. लेकिन कृष्ण गलती से अपनी बांसुरी कूदकर चले गए। So she took, Kotila took in one hand the flute and in the other hand Radharani and went before the house. और कुटिला ने क्या किया? कुटिला ने एक तरफ उस बांसुरी को पकड़ा और दूसरी तरफ राधारानी का हाथ पकड़ के घर के सामने की ओर चली गई। And she was calling out, I've news here, and she put the flute in the air. और वो कहने लगी मेरे पास से खबर है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। और उनके हाथ में कृष्ण की बांसुरी थी। So she said to all the gopis, many came, that I've the proof now here that Krishna was with Radharani. और वो ऐसे बोलने लगे कि आज मेरे पास सबूत है, देखो ये बांसुरी को देखो, कृष्ण राधा रानी के साथ था। And then Srimati Radharani started to cry. और श्रीमती राधा रानी इस आरोप को अपने ऊपर लगते हुए देखकर रोने लगी और बहुत रोने लगी। But there was an elderly gopi. और तभी वृद्ध गोपी वहाँ आई। Her name was Purnamasi. और उनका नाम पूर्णमासी। Purnamasi. And she started to laugh. और पूर्णमासी आकर जोर-जोर से हंसने लगी। And Kotila said to Purnamasi, why are you laughing? This is very serious. और पूर्णमासी को कुटिला बोलती है, ए तुम हंस क्यों रही हो? ये कोई मजाक चल रहा है? And Purnamasi said, don't you know?
पूर्णिमा से बोली तुम्हें पता नहीं है Last evening, it rained flutes all over Vrindavan. तुम्हें पता नहीं है कि पिछले रात को बांसुरियां पूरे वृंदावन में थी And she took Kotila by the hand and went to our room, and they found 2 flutes. और पूर्णवासी कुटिला का हाथ पकड़ के उनके घर में लेकर गई और पाती है कि उधर 2 फ्लूट्स रखे 2 बांसुरियां थे And in the room of Chatila, they found 3 flutes. Chatila. और चटिला के रूम में उनको 3 बांसुरियां मिली But in the meantime, Srimati Radharani had been very embarrassed. लेकिन इन सब के बीच में श्रीमती राधा रानी को काफी बुरा लगा And Krishna was thinking, we have to do something about it. और कृष्ण को लगने लगा कृष्ण को कुछ तो करना पड़ेगा इसका So, once Krishna was with Mother Yasoda and Nanda Maharaj in the house. Once Krishna was with Mother Yasoda and Nanda Maharaj in the house. और एक बार कृष्ण यशोदा माता और नंद महाराज के साथ उनके घर पे And suddenly Krishna fainted. और कृष्णा एकदम से चक्कर आकर गिर गए And Mother Yasoda said to Nanda Maharaj, get a doctor, please. और यशोदा माता बोलती है कि कुछ करो नंद बाबा जाओ जाकर कहीं से डॉक्टर कोई वैद्य को दिखा आओ And Nanda Maharaj was thinking, I'm in this small village, there is no doctor here. नंद महाराज बोलते हैं मैं छोटे से ग्राम में हूँ छोटे से विलेज में हूँ यहाँ मुझे कहाँ डॉक्टर मिलेगा कहाँ कोई वैद्य मिलेगा मुझे So this Ayurvedic doctors in these times, 5,000 years before, they could be recognized how they are dressed and the instruments they had with them. तो आज से 5,000 साल पहले जो वैद्य हुआ करते थे वो बड़ी अच्छे से समझ जाते थे कि हमने किस तरह के कपड़े पहने जो चीजें हमारे पास वो सब समझ जाते थे So Nanda Maharaj went out and was thinking, where am I going to find the doctor? और नंद महाराज सोच रहे थे कि मुझे ये वैद्य मिलेगा कहाँ मिलेगा And suddenly he sees a doctor coming. और अचानक ही नंद महाराज अपने घर के बाहर देखते तो पाते हैं कि एक डॉक्टर एक वैद्य उनके घर की तरफ चला आ रहा है Of course, this doctor was Krishna, who expanded and took the form of a doctor. और आप तो समझ ही सकते हैं वो डॉक्टर कौन था वो डॉक्टर कोई और नहीं वो कृष्ण ही थे जो अपने आप को एक्सपैंड करके एक कृष्ण इधर बेहोश पड़े थे और दूसरे कृष्ण वहां से चलते चले आ रहे थे And when Nanda Maharaj saw the doctor, he said, you have been sent by Lord Narayan. और जैसे ही नंद महाराज ने वो वैद्य को देखा तो नंद महाराज कहते हैं अरे वैद्य आपको निश्चित ही भगवान ने भेजा है तभी आप इधर आए हैं नहीं तो ऐसा तो संभव ही नहीं है Please come to my house. My son is fainted. आइए वैद्य जी मेरे घर पे आइए मेरा पुत्र ऐसे बेहोश होकर पड़ा हुआ है So, like these doctors do, he comes into the house and he takes the pulse of Krishna. अब ये जो वैद्य है ये वैद्य आता है और जैसे ही घर में आता है वे कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के कृष्ण का पल्स चेक करते हैं So they just by feeling with 2 fingers they can diagnose and feel so many things. तो वैद्य जो होते हैं वे केवल अपनी 2 उंगलियों से नाड़ी को छूकर ये समझ जाते हैं कि क्या-क्या चीजें हुई हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है तबीयत कैसी है किसी भी व्यक्ति की In 1998 I was in Vrindavan 1998 में मैं वृंदावन में था with Janmashtami. जन्माष्टमी में At midnight we have a feast. और मध्य रात्रि में हमारे लिए एक बहुत सुंदर भोजन का आयोजन किया गया था Nice feast, but after the feast I became very sick. प्रसाद इतना अच्छा था कि प्रसाद लेने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया So next day I had to take a rickshaw to a doctor. और इसी कारण मुझे अगले दिन एक रिक्शा लेना पड़ा डॉक्टर के पास जाने के लिए And
I went to the doctor who treated Srila Prabhupada. और मैं उस डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर ने श्रील प्रभुपाद की चिकित्सा की थी। And he was very happy to see me, a brahmachari from ISKCON. और From the मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी था। And he put his 2 fingers on my pulse and he looked at me. और उन्होंने अपनी 2 उंगलियों को मेरी नाड़ी पे रखा और मेरा मुझे ट्रीट करने लगे। He said, your age is 38. और वे बोले कि तुम्हारी उम्र 38 साल है। That was correct. वो सही था। And then he was describing everything I was feeling in my body. और फिर वो धीरे-धीरे हर एक उस चीज के बारे में बताने लगे जो मैं महसूस कर रहा था अपने शरीर के अंदर। He said, nothing serious. Nothing serious. There is nothing serious. हाँ, यही से उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ गंभीर बीमारी नहीं है, सब ठीक है। You fast for 1 day. तुम एक दिन का उपवास करो। And then you simple prasad, some rice and dal, and that's all. और फिर हल्का प्रसाद लो, राइस दाल हल्का प्रसाद लो। And I was okay. और फिर मैं ठीक हो गया। So, but in the case of Krishna was different. He was feeling the pulse of Krishna. लेकिन कृष्णा के केस में चीजें अलग थी। कृष्ण का ही पल्स देख रहे थे। And after that, he was like, these Ayurvedic doctors use also astrology, and he was making calculations. अब ये जो वैद्य होते हैं, तो ये साथ बहुत अच्छे ज्योतिष भी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृष्ण का हाथ देखा और उसके बाद वो कुछ गणना करने लग गए, कुछ गणित करने लग गए। And then he looked at Mother Yasoda and said, "It's very serious." और वैद्य नंद बाबा और यशोदा माँ की तरफ देखकर बोलते हैं, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। But let's see what we can do. देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। Doctor was again making calculations. और फिर वो अपनी गणना में फिर से लग गए। He said the only solution for that disease is that a chaste woman takes a pot with 108 holes in and goes with this pot to the Yamuna. एक सती नारी एक पात्र ले और उस पात्र में 108 छेद होना चाहिए और उस सती नारी को उस गमले को लेकर यमुना में जाकर पानी भरना। And then she must put the pot into the Yamuna, fill it with water, and lift it out. And with the power of her chastity, all the water must remain in the pot. और वो जो पात्र है जिसमें 108 छेद हैं, उस पात्र को यमुना में डुबाना है, यमुना में डुबाकर उसमें पानी भरना है और फिर उस पानी को लेकर बाहर आना है, लेकिन उस पात्र में से एक भी बूंद नीचे छलकना नहीं चाहिए। वो जो सतीता, कोई भी नारी की जो सतीता है, नारी अगर सती है तो उसकी सतीता के कारण उस छेद वाले पात्र से एक भी बूंद नहीं टपकना चाहिए। So Mother Yasoda said, "No problem, I will do it." और यशोदा माई ने बोला कि ठीक है, हम कर देंगे। And the doctor said, "No, it cannot be the mother." लेकिन आप नहीं कर सकती हैं। ये जो विधि है, ये माताएं नहीं कर सकती। So Mother Yasoda went out, all the gopis together, and got a pot with these holes. अब यशोदा माई बाहर जाती हैं और बाकी सारी गोपियों को लेकर एक इस तरीके का पात्र बनाती है जिसमें कि 108 छेद हैं। And they went to the Yamuna. और फिर वे ये सब यमुना जाते हैं। And one gopi after another tried, put a pot in the water, lifted out, but all the water came out. और उसमें से एक गोपी उस गमले को लेती है, उस पात्र को लेती है, पानी में डुबाती है और जैसे ही बाहर आती है तो पात्र की पूरा पानी ही चली गया। So then Mother Yasoda went back to the doctor.
अब यशोदा माई क्या करती, तो वो डॉक्टर के पास वापस जाती है She said to the doctor, is there no hope? It doesn't work. और वे जाकर वैद्य को बोलती है कि वैद्य जी ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये संभव ही नहीं है। And the doctor said, are there no chaste women in Vrindavan? तो डॉक्टर बोलते हैं क्या ये सत्य है कि इस वृंदावन में कोई भी सती नारी नहीं है? And the doctor said, it's very serious. और ये बहुत ही गंभीर विषय है। And started again to calculate. और वे फिर से कुछ गणना करने लगते हैं। He said, the doctor said, maybe there are 2 chaste women in Vrindavan. Yeah. और कुछ गणना करने के बाद फिर वैद्य जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 2 सती नारियां हैं वृंदावन। Are there not 2 elder gopis in Vrindavan with the name Kotila and Chotila? और वो जो 2 सती नारी हैं वो चटिला और कुटिला है। And Mother Yashoda said, yes. So, well, ask them. और यशोदा माई बोलती है हाँ ठीक है उनको बुलाते हैं। So Mother Yashoda went to Chatila and Kotila and explained the situation. अब यशोदा माई दौड़ते दौड़ते जटिला और कुटिला के पास गई और उनको पूरी की पूरी जो पूरा ड्रामा है उसके बारे में बताया। And Chatila said, finally, we are recognized as the most chaste. और फिर जटिला बोलती है देखो अब जाकर वृंदावन वासी मुझे पहचानता है, अब जाकर इन्हें पता चला कि हम लोग सती नारियां हैं। So they became proud. और बहुत खुश हो गई। But then, yes, they went with a pot with 108 holes to the Yamuna. और फिर उनको भी कहा गया कि चलिए यमुना में आइए और इस छेद वाले पात्र से यमुना मैया से पानी भरिए। And they put his pot in the Yamuna and lifted it up, and all the water came out. और फिर उनने भी वही किया, उनने उस पात्र को लिया, यमुना में डाला और यमुना से निकला तो सारा का सारा पानी निकल गया। So Mother Yashoda went to the doctor and explained the situation. अब यशोदा माई क्या करती? यशोदा माई फिर से कृष्ण के पास वैद्य रूपी कृष्ण के पास गई और वैद्य से बोलती है कि कुछ हो नहीं रहा है, वो 2 सती नारियां भी कुछ नहीं कर पाई। And the doctor said, it's very serious, and he started to calculate again. और वैद्य यशोदा माई को बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय हो उठा है और फिर से कुछ गणना करने लगते हैं। And then the doctor said to Mother Yashoda, is there no gopi with the name Radhika? और फिर वैद्य बोलते हैं कि वृंदावन में क्या कोई गोपी है जिसका नाम राधिका है? So this is the last chance. You ask her. और ये आखिरी मौका है, तुम एक बार देखो कि कोई राधिका नाम की कोई गोपी है क्या वृंदावन में, वही कुछ कर सकती है। So Mother Yashoda went to Srimati Radharani. और यशोदा माई इसी तरीके से राधा रानी के पास जाती हैं। And Srimati Radharani said, I've been too much embarrassed. I don't want to go through another embarrassment. No, I will not do it. और राधा रानी बोलती है यशोदा माई को कि मैं अब कहीं नहीं जा सकती, मेरा इतना असम्मान हुआ है और मेरे बारे में इतनी बातें उछाली गई हैं, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और मैं असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकती। And Mother Yashoda told her, you must do it. It's a question of life and death. You must do it. और यशोदा माई कहती है नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कृष्ण अभी भी बेहोश है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। So Srimati Radharani went with Mother Yashoda with the pot to the Yamuna. और इसी तरीके से श्रीमती राधा रानी उस पात्र को लेकर यशोदा माई के साथ यमुना में चली गई। She put a pot with all the holes in the water, and she was convinced the water is going to come out. और उन्होंने उस पात्र को लिया जिस पात्र में 108 छेद थे और उनको पूरा विश्वास था
कि वो जैसे ही पानी भर के ऊपर निकालेगी पूरा पानी बह जाएगा, गिर जाएगा। But when she lifted the pot, all the water remained in the pot. और जैसे ही उसने उस पात्र को ऊपर उठाया, उस पात्र में 108 छेद थे, लेकिन एक भी पानी का बूंद उससे बाहर नहीं चलता। So they brought the water to the doctor. और फिर उन्होंने उस पानी के पात्र को लेकर कृष्ण के पास, डॉक्टर के पास आ गए। And the doctor sprinkled the water on Krishna, and Krishna opened his eyes. और कृष्ण रूपी डॉक्टर ने उस पानी को लिया और कृष्ण के ऊपर एक छिड़क दिया। So these are these blissful pastimes in Goloka Vrindavan और ये सुंदर सुंदर कहानियां गोलोक वृंदावन की हैं। that this. I want to tell another pastime which was very dear to Bhakti Maharaj. मैं और एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति स्वामी महाराज का बहुत प्रिय कहानी है। Because as spirit souls, we belong to the spiritual world. The spiritual world is our home. क्योंकि हम सभी आत्माएं भगवान का अभिन्न अंग हैं और जो भौतिक जगत में हम अभी तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत हमारा घर है। This material atmosphere, Krishna says, is dukkhalayam asasvatam. ये जो भौतिक संसार है, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का आलय है। Full of misery and it's temporary. ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये पूर्ण तरीके से दुख से भरा हुआ है और ये क्षणिक टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है। But the spirit soul is Satchitananda, it's full of bliss, knowledge and eternal. और जो आत्मा है ये सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद मतलब सच्चिद आनंद, ये आनंद से परिपूर्ण है और इटर्नल है, हमेशा के लिए है। And our home is the Satchitananda world, the spiritual world. और हमारा जो घर है वो सच्चिदानंद, जो सच्चिद जगत है, चित्त जगत, वो हमारा घर है। Srila Rupa Goswami is one of the direct followers of Lord Chaitanya. श्रील रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, And his brother was Sanatana Goswami. और उनके भाई श्री सनातन गोस्वामी, Sanatana Goswami wrote a book, Brihad Bhagavatam Rita. सनातन गोस्वामी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बृहद भागवतामृत। And in Brihad Bhagavatam Rita, two stories are presented, two pastimes. और श्रीमद् बृहद भागवतामृत के दो हिस्से हैं। And one of these two pastimes is the pastime of Gop Kumar, who goes back to the spiritual world. और उनमें से जो दूसरा भाग है वो कहानी है एक बालक की जिसका नाम है गोप कुमार, और वो बताते हैं कि उसकी जो जर्नी है भगवत धाम की उसके बारे में। And this was the most favorite book of Bhakti Maharaj. और ये गुरु महाराज श्री भक्ति स्वामी महाराज का बहुत ही प्रिय एक पुस्तक था। And he was telling these pastimes as he was, like he was there. और जब श्री भक्ति स्वामी गुरु महाराज इन गोप कुमार की कहानियों के बारे में बताते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वास्तविकता में श्री गुरु महाराज वहाँ उपस्थित हैं, गुरु महाराज उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, और जब वो बताते थे तो हमें लगता था कि हम भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। And because we belong to this spiritual world, and this the conclusion of this pastime shows
when Gopkumar enters the spiritual world. क्योंकि हम सभी चित्त जगत के व्यक्ति हैं, हम सभी आत्माएं भगवान का अभिन्न अंग हैं, तो हम भी एक समय जाकर भगवान से मिलने वाले हैं। और ये जो हम कहानियां सुनते हैं, ये भगवत धाम की कहानियां हैं, और गोप कुमार की कहानी वास्तविकता में वो कहानी है जो कि एक जीव के भगवत धाम जाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। So if we love Krishna and develop this love, we will go back to our home. और अगर हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, अगर हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, तो हम भी कृष्ण के पास भगवत धाम में हमारे घर में जा सकते हैं, जो हमारा वास्तविकता में असली घर है। And we will go to a similar experience. और हमें भी वही चीजें जो कि गोप कुमार या फिर कोई भी भक्त जो कि भगवत धाम जाता है, जो चीजें देखते हुए जाता है, जो चीजें महसूस करता है, हम भी जब जाएंगे तो उन सब चीजों का आस्वादन करेंगे, हम भी वो चीजों को देखेंगे होते हुए। So Gopkumar, he was a coward boy in Vrindavan here on the earth. और वृंदावन, इस भौतिक संसार में जो वृंदावन है, उस वृंदावन में एक बालक था, उसका नाम था गोप कुमार। And he was always chanting a mantra which he had received from his spiritual master. और वो हमेशा ही एक मंत्र का जप किया करता था। ये वो मंत्र था जो कि उसको उसके गुरुदेव ने दिया था, which is called the Gopal mantra. और इस मंत्र का नाम था गोपाल मंत्र। But the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, has the same power. गोपाल मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दो मंत्र एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही मंत्र है। So Gopkumar was chanting in Vrindavan. और गोप कुमार वृंदावन में इस मंत्र का जप करने लगे। And suddenly, in the forest of Vrindavan, he sees Krishna. और इस मंत्र का जप करते करते वो वृंदावन में एक दिन कृष्ण का दर्शन करते हैं। And he runs after Krishna. He wants to catch Krishna. और कृष्ण को देखकर ये बालक गोप कुमार कृष्ण के पीछे भागने लगता है, दौड़ने लगता है। उसको कृष्ण को स्पर्श करने की इच्छा जागृत होती है। But absorbed in his ecstasy of running after Krishna, he falls into the Yamuna. और कृष्ण को स्पर्श करने के विचार से वे कृष्ण की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाते हैं और उसी क्षण में यमुना में गिर जाते हैं। And a moment later, he's sitting in a spiritual viman, a spiritual airplane. और जैसे ही वो यमुना में गिर जाते हैं, तो एकदम से वो यमुना में बहने लगते हैं, और कुछ ही क्षण बाद वो अपने आप को एक विमान में पाते हैं, एक आध्यात्मिक विमान जो कि तीव्र गति से चल रहा है। And he sees how he travels through the entire material world. He comes to Svargaloka, Marloka, Tapaloka, Janaloka, Satyaloka. और इस तरीके से वो जब चलता चला जाता है, तो वो दिखता है कि वो अलग-अलग लोकों से होते हुए जा रहा है। तपलोका, महलोका, सत्यलोका, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। And then the airplane goes through the coverings of the universe. और धीरे-धीरे ये विमान ऊपर चढ़ते ये जो कवरिंग है, भौतिक जगत की जो कवरिंग है, उसके पास पहुंच जाता है। And it comes into the Brahma Jyoti. It's very effulgent there, like thousands of suns. और ये विमान उड़ते उड़ते जैसे ही ब्रह्मांड के लेयर को क्रॉस करता है, तो वो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। और ब्रह्म ज्योति इतना ज्योतिर्मय था, ऐसा कि मान लीजिए वहाँ 1000 सूर्य हैं, इस तरीके से इतना ज्योतिर्मय था।
And then he flies to all the Vaikuntha planets. और धीरे 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 ये विमान वैकुंठ होते हुए ऊपर और बढ़ता चला जाता है. There are innumerable Vaikuntha planets, and Krishna says in Bhagavad Gita, these planets, they have their own effulgence, they give light, great light. तो ये जो हर एक वैकुंठ ग्रह है, वो हर एक वैकुंठ ग्रह को होते हुए ये विमान जाता है. और कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कृष्ण इस तरीके से कहते हैं कि हर एक वैकुंठ ग्रह का खुद का ज्योति है और वो ज्योतिर्मय है, वो अपनी ज्योति से प्रकाश देता है. And he flies over all these Vaikuntha planets, and then he comes into the highest spiritual planet, Goloka Vrindavan. और ऐसे ये विमान उड़ते 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 सारे ग्रहों को पार करते करते गोलोक वृंदावन चला जाता है, जो कि सबसे उच्च स्तर पर स्थित है. And he arrives in Goloka Vrindavan, and he sees, he feels that the air is filled with devotion. The whole atmosphere is filled with devotion and bliss. और जब गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जो वहाँ का पूरा वातावरण है वृंदावन का, वो पूरा आनंदमय है और खुशी से परिपूर्ण है. But he thinks, oh, this place looks like the earthly Vrindavan. लेकिन गोकुमार कहते हैं कि ये वृंदावन तो मेरे भौतिक जगत में जो वृंदावन था वैसा ही दिखता है. But then he sees some gopis. और ऐसा बोलते ही गोकुमार को कुछ गोपियां दिखती हैं. And he wants to approach these gopis and ask for the house of Nanda Maharaj because he wants to see Krishna. तो इसी तरीके से हमारे गोकुमार सोचते हैं कि क्या किया जाए. इन गोपियों को जाकर वो पूछना चाहते हैं कि गोपियों मुझे बताओ कि नंद महाराज का घर कहाँ है नंद महाराज का घर. But it is during the daytime, and Krishna is away herding the cows. और क्योंकि ये करीबन दोपहर का समय था, अभी जैसा हम देख रहे हैं वैसा कुछ समय था, और कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए हुए थे. And what happens in the morning when Krishna left with the cows, the gopis, their mind is fixed on Krishna. तो जब कृष्ण सुबह सुबह गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो सब जो गोपियां हैं, सभी गोपियों का मन पूरी तरीके से कृष्ण पर केंद्रित रहता है. Krishna is called Manohar. He steals the mind of his devotees. और इसीलिए कृष्ण को मनोहर कहा जाता है. क्यों मनोहर कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण मन को हर लेते हैं. Therefore, during the day when Krishna is herding, they are always absorbed in Krishna. They don't see anything else. और इसीलिए कोई भी गोपी कुछ भी कह ही नहीं पा रही थी, कुछ सोच ही नहीं पा रही थी सिवाय कृष्ण के. क्योंकि कृष्ण जब गाय को चलाने के लिए गए थे, कृष्ण अपने साथ इन गोपियों का मन भी लेकर चले गए. So Gopkumar tried to ask them a question, but it was like they didn't see him. और गोकुमार जाकर प्रश्न पूछते हैं उन गोपियों से कि गोपियों नंद महाराज का घर कहाँ है, लेकिन गोपियां कोई उत्तर ही नहीं देती है. लगभग ऐसे कि जैसे वो ऐसा नोटिस ही नहीं करती है कि वहाँ कोई व्यक्ति है. वे कृष्ण के बारे में सोचने में इतना ज्यादा लिप्त है, इतना ज्यादा उनका मन कृष्ण में केंद्रित है. So he tried to get their attention and said, oh, but they didn't see him. और गोकुमार ऐसे हाथ लगाकर बोलते, अरे सुनो सुनो गोपियों सुनो, मेरी बात सुनो. लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था. गोपियां कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी, उसके बारे में ही सोच रही थी, और गोपियां गोकुमार की तरफ देख भी नहीं रही थी. But there was an elderly gopi, her name was Purnamasi.
गोपी थी और उनका नाम था पूर्णमासी। So she saw Gopkumar and felt compassion for him. और जब पूर्णमासी गोपी ने गोपकुमार को देखा तो उनके हृदय में गोपकुमार के लिए थोड़ा सा And दया has always been a coward boy also. क्योंकि गोपकुमार हमेशा से ही एक गाय चराने वाला बालक था। So Purnamasi said, you go this way and that way, and then you get at the house of Nanda Maharaj. तो पूर्णमासी उनसे कहती है कि देखो आगे से जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर वैसे जाओ, और फिर तुम्हें देखना बाईं तरफ नंद महाराज का घर दिखेगा। So finally arrived before the house of Nanda Maharaj, the palace of Nanda Maharaj. और आखिरकार गोपकुमार नंद महाराज के घर में जाकर पहुंचते हैं। At that time in Goloka Vrindavan, it was like 4 p.m. और ये कुछ करीबन 4-4:15 बजे का समय था जब नंद महाराज के घर में हमारे गोपकुमार पहुंचते हैं। And when he came out of the palace, he saw another astonishing thing. और जब वो नंद बाबा के घर पहुंचते हैं तो वो एक दूसरी विस्मय करने वाली एक चीज का आस्वादन करते हैं, उसको देखते हैं। He saw Nanda Maharaj and Mother Yasoda and an elderly coward man stand before the house, and they were standing there like statues. They didn't move. और वो जब नंद बाबा के घर जाते हैं तो वो एक विचलित करने वाला दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं और जितने भी गोप हैं, नंद महाराज, यशोदा माई, सभी नंद महाराज के घर के सामने खड़े हैं और कोई हिल भी नहीं रहा है, एकदम स्तब्ध होकर खड़े हैं और एक दिशा में देखे चले जा रहे हैं। And he could see how their eyes were focused on the horizon. They were looking at the horizon with their eyes and didn't move like statues. और वो देख रहे थे, गोपकुमार पाते हैं कि जो आंखों का जो दृष्टि है वो क्षितिज की ओर केंद्रित है और सारे जितने भी गोपालाएं हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, सब उस क्षितिज की तरफ देखते चले जा रहे हैं जहां सूर्य और धरती मिल रहा है। And Gopkumar was looking at the horizon. और गोपकुमार भी उस क्षितिज की ओर देखने लगता है। And suddenly he saw far away at the horizon clouds of dust all over the horizon coming, clouds of dust. अचानक ही गोपकुमार ये देखता है कि जो क्षितिज है वो क्षितिज गौधूलि से पूर्ण तरीके से वशीभूत हो जाता है, पूरी तरीके से गौधूलि से भर जाता है। And then he saw thousands of cows coming. और फिर अचानक से वो देखते हैं कि हजारों गायें चलती चली आ रही हैं। And they came closer. और वो और पास आती चली जाती हैं। And then he saw before. So then he saw before the cows. और फिर वो Yeah, I will give you. So then he saw before the cows hundreds of cowboys coming. और फिर वो गोपकुमार देखता है कि उन हजारों गायों के सामने और हजार गोपास आ रहे हैं और गोपास भी आते चले जाते हैं। Yeah. And then we saw before and in front of these cowboys, he saw Krishna. और फिर इन सभी गोप और गायों के सामने गोपकुमार देखता है कि कृष्ण आ रहे हैं। And when Gopkumar saw Krishna, he started to run towards Krishna.
और जैसे ही गोप कुमार देखते हैं कि कृष्ण सामने आ रहे हैं, गोप कुमार कृष्ण की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। And Krishna was running to Gopkumar. और कृष्ण भी गोप कुमार की तरफ आने लगते हैं। And when they met, they embraced each other. और जब गोप कुमार और कृष्ण एक दूसरे को देखकर आमने सामने आ जाते हैं, तो कृष्ण और गोप कुमार एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। And Krishna said to Gopkumar, Svarup, I missed you so much. Where you have been all this time? और कृष्ण गले लगाकर गोप कुमार को कहते हैं, स्वरूप तुम कहाँ थे इतने दिन? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। So Gopkumar's spiritual name, spiritual Svarup, was Svarup. His name was Svarup in the spiritual world. और जब गोप कुमार पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन में, कृष्ण उनको अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि स्वरूप तुम कहाँ थे इतने दिन। तो इससे हमें ये समझ में आता है गोप कुमार का जो स्पिरिचुअल नेम था, जो सिद्ध स्वरूप था, उसका नाम था स्वरूप। He's a family member of Radharani. और वे श्रीमती राधा रानी के परिवार का एक हिस्सा थे। So Krishna embraced him and then he fainted out of love for his devotee. और कृष्ण ने जैसे ही गले लगाया गोप कुमार को और उनको अपने सिद्ध स्वरूप के नाम से संबोधित किया, उसी क्षण कृष्ण का इतना प्रेम उत्पन्न हुआ गोप कुमार के प्रति कि वे उस प्रेम भाव में भावित होकर बेहोश हो गए। And all the cowherd boys and gopis came around Krishna who had fainted. और सारे गोपियां सब कृष्ण के पास चले आए और देखने लगे कि अरे कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण कैसे बेहोश हो गए। One gopi said, "Who is this new cowherd boy? Is he a messenger of Kamsa?" और उनमें से एक गोपी बोलती है, ये कौन है ये नया लड़का जो आया है, कहीं ये कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस तो नहीं? Of course, in Golok at Vrindavan there are no demons. और ये जाहिर सी बात है कि गोलोक वृंदावन में कोई राक्षस नहीं है। But there is only a rumor that Kamsa would come. लेकिन ऐसी बातचीत चलती रहती है कि कहीं कंस है जो कि अपने राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजते रहेंगे। But then Lord Balaram came. और फिर बलराम आते हैं। And Lord Balaram smiled. और बलराम हंसते हैं। And he said, just Kirtan. And they chanted all Krishna's names. और बलराम हंसकर बोलते हैं कि कोई चिंता का विषय नहीं है, आप सिर्फ कृष्ण का नाम लीजिए। और जैसे ही बलराम ऐसा बोलते हैं, सभी कृष्ण का नाम लेने लग जाते हैं। So Krishna loves us so much, all of us. और इससे हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। That if we would be aware of Krishna's love for us, then we are not in the material world anymore. और कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, अगर हमें क्षण भर भी ये पता चल जाए कि कृष्ण हमसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम शायद यहाँ नहीं होंगे। So in this verse of Bhagavad Gita, Krishna shares with us the experience of those who have achieved love of God, prema. तो इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय और 9वें श्लोक में हम ये पाते हैं कि कृष्ण बता रहे हैं कि जिनको इस प्रेम की अनुभूति हुई है, उनका आचरण, उनका विचरण किस तरीके से। But more merciful than Krishna is Srila Prabhupada. लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु कौन है? कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु श्रील प्रभुपाद है। In his commentary, he writes how we can attain this love of God. क्योंकि कृष्ण अनुवाद में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अनुवाद में ये वर्णन करते हैं, कृष्ण तो वर्णन करते हैं कि
किस तरीके से कृष्ण वर्णन करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो कि ये पा सकता है, लेकिन प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। And he quotes from Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita, chapter 19. और वे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय से एक श्लोक बोलते हैं। Lord Chaitanya compared the, the development of our love for Krishna as a seed that grows into a plant. और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम का जो उपमा है वो एक बीज के माध्यम से देते हैं, भक्ति तथा बीज के माध्यम से। But first we need the seed of devotion. इसलिए सबसे पूर्व अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है उस बीज की, उस भक्ति लता बीज की। And so Lord Chaitanya, he explains Brahmanda Brahmade Punya Bhagavan Bhakyavan Shivan Guru Krishna Prasad Payam Bhakti Lata Beach. और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मांड भूमि को भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। Yes. Brahmanda Brahmate, we go up and down in this uniform, in this universe, taking different bodies in different planets, different spheres. और हम इस भौतिक जगत में ऊपर नीचे विभिन्न लोकों में जन्म मृत्यु के चक्र में चलते चले जाते हैं और किसी एक क्षण आकर हमें। But if we become Bhakyavan, if we become fortunate, और अगर हम भाग्यवान बनते हैं तब then by the mercy of Krishna we meet a bona fide spiritual master. और कृष्ण की कृपा के कारण हमारी भेंट एक शुद्ध वैष्णव से होती है, एक शुद्ध वैष्णव गुरु से होती है। And the spiritual master gives us the seed of devotion. और हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमें भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं। Then we have to plant this seed. और उस बीज को लेकर हमें उसको प्लांट करना है, उसको हमें लगाना है, माटी में बोना है। We have to become an expert gardener. और हमें एक बहुत ही एक्सपर्ट माली बनना पड़ेगा। We have to water the seed हमें इस बीज पर पानी डालना पड़ेगा। by hearing about Krishna and by chanting. कैसे कर सकते हैं? कृष्ण के बारे में सुनकर और कृष्ण के बारे में जप कर। And then gradually the seed will grow into a creeper. और धीरे-धीरे ये बीज से एक पौधा निकलेगा। And this creeper in the beginning has only 2 leaves. और ये जो भक्ति का बीज से जो पौधा उत्पन्न होता है उसकी 2 शाखाएं होती है, 2 पत्तियां निकलती हैं। And these 2 leaves, they have a name. और इन 2 पत्तियों का नाम है Klesagni and Subhadra. इसका नाम है क्लेशाग्नि और शुभदा। Klesagni means it will remove most of your suffering. क्लेश अग्नि का मतलब है कि हमारा जितना भी क्लेश है, हमारी जितनी भी कठिनाई है उसको भस्म कर देगा। And Subhadra, your life become auspicious because gradually all your bad karma is removed. क्योंकि क्लेशाग्नि के कारण जब सारा हमारा क्लेश मिट जाएगा तो शुद्धता मतलब सब कुछ सुखमय ही हमारे पास बचेगा। But we have to take care of the weeds. लेकिन हमें खरपतवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। If the weeds overgrow the young creeper, Lord Chaitanya said, then it will die. That's dangerous. लेकिन अगर इस छोटे से पौधे के आसपास खरपतवार उग गया तो क्या होगा? ये जो हमारा भक्तिलता बीज से निकला हुआ पौधा है धीरे-धीरे मर जाएगा। Therefore, we have to avoid all offenses against the holy name. और इस कारण से
हमें अपराधों से मुक्त रहना पड़ेगा और अपराधों से मुक्त होकर जप करना पड़ेगा। But if we can avoid this apparatum, the plant will grow and grow and go to the universe and to the Vaikuntha planets and arrive in Goloka Vrindavan, this plant. और अगर हमने अपराध मुक्त होकर भगवान का नाम लिया तो ये जो पौधा है जिसकी 2 पत्तियां हैं, ये पौधा बढ़ते 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 सारे के सारे ग्रहों को पार करते हुए, वैकुंठ लोक को पार करते हुए, द्वारका लोक को पार करते हुए जाकर गोलोक वृंदावन में जहाँ कृष्ण है वहां तक ये पौधा पहुंच जाएगा। And there in Goloka Vrindavan, the plants will produce fruits, the fruit of love of God. और ये पौधा जब गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगा, तब ये पौधा गोलोक वृंदावन में पहुंचकर फल देगा, और वो फल होगा भगवान के प्रति आस्था, विश्वास और प्रेम। But even within that process of cultivating these devotional seeds, you will feel great satisfaction. और इसकी और एक महिमा ये है कि जब आप ये भक्ति जीवन में इसको पाने का प्रयास करेंगे, जब आप ये भक्ति जीवन में प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी, बहुत ज़्यादा आनंद आपको मिलेगा। And we will experience this bliss which are the residents of Vrindavan experiencing. और ये जो आनंद हमको मिलेगा, ये जो प्रेम हमको मिलेगा, ये प्रेम, ये आनंद उस आनंद से भिन्न नहीं है जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन के वासी वृंदावन में भोग करते हैं, महसूस करते हैं। This methodology of cultivating the plant of devotion, ये प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में हम इस भक्ति पौधे का नरिशमेंट करते हैं, इस भक्ति पौधे को उगाते हैं और बढ़ाते हैं, this is described in Bhakti Rasamrita of Rupa Goswami, Nectar of Devotion. इसको भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है, जिसको कि श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। There all the practices of devotional service are described. जिसमें कि भक्ति की सारी प्रक्रियाओं का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। Srila Prabhupada said, this is the manual for our devotional service. The manual of और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे कि हर एक किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल की जरूरत है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो किताब है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु है, ये वास्तविकता में एक मैनुअल है कि एक जीव को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। If you don't have this book, take it with you today. और अगर आप में से किसी के पास ये ग्रंथ नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु, तो आप आज ही इसको यहाँ से लीजिए। If you have the book, read it every day. Srila Prabhupada wanted us to read it every day. और अगर आपके पास ये किताब है, तो आप उसका डेली रोज रोज उसको पढ़िए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त इस ग्रंथ को पढ़े और जाने कि वो किस तरीके से भगवान के और समीप जा सकता है। It will make your life highly sublime. ये आपके जीवन में आपको आनंद प्रदान करेगा। And it will help you to return to our home, the spiritual world. और ये आपको मदद करेगा हमारे सामने, हमारे घर में वापस जाने के लिए, जो कि भगवत धाम है। Thank you very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Any question? किसी का कोई क्वेश्चन है? Hare Krishna Maharaj, my question is
that how can I get rid of all these offenses that I'm doing? Thank you for this question. Do you want to translate the question? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए. That yes, that the offenses are due to an offensive attitude in our heart. ये जो अपराध हम करते हैं ये हमारे हृदय में हमारा अपराध करने का जो टेंडेंसी है उसके कारण है. The 10 offenses are based on different forms of disrespect. ये जो 10 नाम अपराध हैं ये 10 तरीके के डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर को बताते हैं. So, disrespect towards the devotees, भक्तों को असम्मान करना, disrespect towards the holy name, भगवान के शुद्ध नाम का असम्मान करना, disrespect by not following the instructions of the spiritual master. अपने गुरुदेव की अवज्ञा करना. So, but what will help to cultivate that respect? तो अगर ये असम्मान हम कर रहे हैं हम क्या करें कि हम असम्मान की बजाय सम्मान करने लगे? Is accepting the formula of Lord Chaitanya. हम अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करेंगे, Prabhava says, no, Kirtanya Sada, no, does it start in third, Sikshashyam, third verse? No, yeah, but the third verse. Trinata Pishnusna Torah Visaisna Amana Namanadina Kirtanya Sadahari. That's the formula to chant with success. अगर हम वास्तविकता में अपराध मुक्त होना चाहते हैं तो हमें श्री शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा गया शिक्षाष्टकम का जो तीसरा श्लोक है उस पर मनन करना पड़ेगा. त्रिनादपि सुनीचेना करोड़ इव सतीशना अमानिना मानदेना की प्रज्ञा सदा करें. So, Srinata Pishnanichana, one should be more humble than a straw in the street. एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा हम्बल होना चाहिए कि वो We came to this world to exploit others, to exploit the material energy. हम इस भौतिक जगत में आए हैं भोग करने के लिए, यहाँ की वस्तुओं को भोग करने के लिए और इस भौतिक शक्ति को भोग करने के लिए. We think ourselves the big controllers. और हम समझते हैं कि हम चीज़ों को निर्धारित अपने अनुसार कर सकते हैं. As long as we don't give up that tendency और इस कारण से हम अपनी इस आदत से मुक्त नहीं हो पाते हैं. and take the humble position of a servant, we will not make progress. और इस तरीके से हम एक निम्न अवस्था को प्राप्त कर नहीं पाते क्योंकि हमारी ये कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो बनी रहती है. To come to that position, तो उस पोजीशन में उस स्तर पे आना जरूरी है. we must realize that we are complete nonsense. हमें ये समझना पड़ेगा कि हम पूर्ण तरीके से That if we don't realize that, the chanting will not be very much effective. अगर हम हमारा वास्तविक स्तर नहीं जांच पाएंगे और हम उस पर कार्यरत नहीं होंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा जो जप है वो निरर्थक रह जाएगा. We must pray to Lord Krishna in the mood that, please forgive me, I came to this world to take your position of enjoyer, and I'm a great nonsense, please forgive me. कृष्ण से क्षमा याचना करनी चाहिए कि कृष्ण हम इस भौतिक जगत में आ तो गए हैं
लेकिन आपके बगैर यहाँ रहना इससे कोई मतलब नहीं है। कृपा करके मुझे वापस लेकर आ जाइए। And we must be tolerant, because all the suffering that we get, we deserve, because it's the reaction of our own past misdeeds in previous lives. हमारे जीवन में जो भी बुरा होता है हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुरा हो रहा है ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, So we must accept that और इसीलिए हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए and not try to avoid. और उसको अवॉइड उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। That requires tolerance. टॉलरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। And one must give up all false prestige. नित्य अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। We don't have anything to achieve in this world. इस भौतिक जगत में हमें कुछ भी पाने के लिए नहीं है। Srila Prabhupada said there is no happiness in this world. इस भौतिक जगत में कोई खुशी नहीं है, ना हम कुछ नहीं पा सकते। We came here just to pass through. We came here just to pass through, to go to the हम throne. यहाँ मल निकालने के लिए आए हैं। If we get this point, then we become humble. और अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हम वास्तविकता में नम्र हो जाते हैं And tolerant. और टॉलरेंट हो जाते हैं। And then our offenses will go. और जब हम नम्र बन जाते हैं तब हम इन सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। Because one is humble, is respectful. क्योंकि जो व्यक्ति नम्र होता है वो सम्मान देता भी है और सम्मान भी योग्य होता है। Does that help you? Is that helpful? क्या ये उत्तर आपको संतुष्टि प्रदान करता है? Yeah. Good. मेरा प्रश्न था कि एक लंबी प्रोसेस है, धीरे-धीरे होगा कि हमारी शरण Maharaj is asking, is it a long process? Is it going to take a lot of time, or it will eventually gradually happen? It depends on your sincerity. Sincerity and how great your desire is to get Krishna. ये आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि आपको कृष्ण पे कितना विश्वास है। Sincerity means I only want to please Krishna in my life and I forget about all the other things. सिंसियरिटी का मतलब ये है कि मुझे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। And we should be greedy to hear about Krishna. और हमें बहुत 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 ज़्यादा उत्सुक होना चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। The bigger our desire to get Krishna, the more quickly it will go. जितना हमारे हृदय में कृष्ण को पाने की इच्छा रहेगी, जितनी तीव्र, उतना ही जल्दी हम कृष्ण को पा लेंगे। But it's up to us. लेकिन ये पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर करता है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you very much. I was very happy to be with you. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के समक्ष आकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस करता हूँ। That I pray that Srila Prabhupada may only bless you. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री प्रभुपाद आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। And if Krishna willing, then I will try to return sometime in the future. Jai Prabhupada. Okay. Maharaj, we would like to express our humble gratitude towards you that you decided. You gave us this opportunity to host you here, but this period was too short, but it was completely nourishing. As you were explaining that how Guru Maharaj used to feel while he used to explain those pastimes, we could see that, how you were also feeling the same thing. So we were feeling as if Guru Maharaj himself is speaking this class. Thank you so much, Maharaj.
महाराज का धन्यवाद प्रदान करते हुए हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे अपने हृदय से। और जो चाहते हैं कि महाराज फिर से वापस आए और महाराज हमें इस तरीके से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, तो वो जोर से हरि बोल बोलेंगे 3 बार। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं कि आप सब आज के इस दोपहर के संडे प्रोग्राम में संडे के प्रोग्राम में आए और परम पूज्य भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा और बहुत शिक्षा प्राप्त हुई होगी आज की महाराज की क्लास से। तो आज का जो संडे प्रोग्राम है उसको स्पॉन्सर किया है 2 भक्तों ने। तो एक है कृष्णकांत प्रभु, उनकी बेटी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। मैं आग्रह करता हूँ कृष्णकांत प्रभु और उनकी बेटी को है तो आए। माता जी का कल जन्मदिन है इस उपलक्ष्य में, तो हम माता जी की प्रार्थना करेंगे अपने पारंपरिक भक्ति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। और एक और भक्त है उन्हें महेंद्र स्वामी प्रभु और उनके बेटे का जन्मदिन कल था, इस उपलक्ष्य में उन्होंने आज स्पॉन्सर किया। तो अगर युधिष्ठिर प्रभु मेरे को सुन पा रहे हैं आसपास में तो नहीं है सर, तो वो गिफ्ट हम ये बात दे देंगे उनको, उनके हम प्रार्थना कर लेंगे सब जोर से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कह के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और जिस प्रकार से महाराज ने वृंदावन जाने की जो उनका जो सफर है गोप कुमार को समझाया आज की क्लास में, वो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो सब जोर से हरिबोल बोलेंगे। तो उसी प्रकार हम वृंदावन जा रहे हैं 2nd February शनिवार रविवार, और किसी को बहुत ज्यादा वृंदावन में रहना है तो एक और एक्सटेंड हो रहा है मंडे 4 तारीख को, जिनको जैसा समय मिल रहा है वो इस ट्रिप में आ सकते हैं। संपर्क करने के लिए वहाँ पे नोटिस बोर्ड में नंबर दिए हुए हैं, आप बुक स्टॉल पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। टिकट्स बहुत कम है, खत्म होने वाली है, मुश्किल से 10-15 टिकट बची है उस रेलवे की, तो कृपया जल्दी कीजिए। हरे कृष्णा। और अभी खत्म नहीं हुआ है एक आप सब जानते हो बहुत विशेष त्योहार आने वाला है, गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा जो है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। इसमें पूरे इस्कॉन जगत में अलग अलग मंदिरों में महाप्रभु के आविर्भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जाता है, और इसी श्रृंखला में इस्कॉन बीएचएल के मंदिर में 11 मंदिर में
हम बहुत सुंदर त्योहार मनाने वाले हैं गौर पूर्णिमा का। इसमें पूरा मंदिर सुंदर तरीके से सजेगा, फूलों से, लाइटिंग से, टेंट से, और भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु का अभिषेक होगा बहुत ही सुंदर। साथ में एक बहुत विशेष महोत्सव है, जिसको हम कहते हैं एनुअल फ्लावर फेस्टिवल, वार्षिक फूलों का महोत्सव। जो पिछले साल जो आए होंगे जो देखा होगा, हम लोग भगवान को लगभग 100-200 किलो फूलों से होली खिलवाते हैं, फूलों की होली खेलते हैं भगवान के साथ, और एक बहुत ही दिव्य दर्शन होता है, दृश्य होता है। भगवान का जो पोशाक होता है वो बहुत विशेष पोशाक हमारी माताएं बनाती हैं, फूलों से बनाती हैं। तो आप सब आइए उसमें हर्षोल्लास से भाग लीजिए और इस त्योहार को सक्सेसफुल बनाइए। इसमें अगर आपको सेवा देनी है, जैसे माताएं जो है पीछे कुछ माताएं फूलों का ड्रेस बनाने वाली हैं, तो कुछ सेवा आप सहयोग देना चाहते हैं तो आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है वो सुंदर पोशाक बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे सेव प्रसादम के लिए और अलग अलग प्रकार के सेवाएं रहेंगी। तो आप सब अगर रहेंगे हमारे साथ उस दिन तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। सुबह से रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आप सबका इंतजार करेंगे गौर पूर्णिमा के दिन, और मैं अभी यहाँ कृष्ण का जो कीर्तन करें प्रसाद शुरू करने वाले हैं। कीर्तन हो गया, अच्छा शुरू हो चुका प्रसाद। तो जिनको प्रसाद लेना ले सकते हैं, जिनको कीर्तन में एंजॉय करना है कीर्तन एंजॉय कर सकते हैं। 5 मिनट कीर्तन की बोली, 5 मिनट कीर्तन होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही धमाकेदार होगा। हाँ बंद कर।